Hare Krishna, good evening, welcome all of you all for our Saturday evening class. So, we are in the midst of Bhisma Stuti, that is the 9th chapter in the first canto of Srimad Bhagavatam. We have completed up to 16th verse. So, 1.9.16 is done. So, we have to start from 1.9.17. But before we go, a fast recap of what we did. Come on, who can share whatever they remember from the last session? Other than me, I think others have also come. All the demigods and everybody has showered so many petals when Vishnu Pitama took the Pratigya. Very good. Yes. Then what else? Bhisma was one of the 8 Vasu. Huh? Who took the plan of Stealing the cow of Vasishtha Muni. He got cursed and he will be living long life. So imagine what cow Vasishtha Muni must be having. Vishwamitra Muni was also behind that cow. The Vasus were behind the cow. So socho kitna. And what is the name of the Vasu, by the way? Chalo, abhi yaad to rahega kam se. Prabhas was the name of the Vasu who was interested in, whose wife was instigating him to carry that, kidnap the cow. 8 Vasus. And out of that, the most important Vasu was Prabhas, who was instigated by his wife to kidnap the cow, Kamadhenu cow. What else? Come on, मैंने काफी बोला था. कुछ भी याद नहीं और किसी को? No. Then what else? Hare Bhishma Pitama was waiting for Lord Krishna to come and visit him. And he was still on the bed of arrows. And what did Krishna do? Yudhishthira Maharaj got the doubt. Hare, I have killed so many people. मुझे कितना पाप किया है? And for that, Krishna said, okay, let me remove that doubt. He could have given part 2, Bhagavad Gita part 2. जैसे even Arjuna was also having the same feeling ना. अरे मैंने इतने लोगों को मारने वाला हूँ. Before the war, Arjuna was having some despondency. And immediately Krishna gave the Bhagavad Gita. And now after the war, Yudhishthira is having the same dilemma and the same doubt. But here, Krishna did not give Bhagavad Gita part 2. He said, chalo, I'll take you to someone senior. Let's go and meet Bhishma Pitama, who is lying on the bed of arrows. And he took him over there. And there he went and he saw Bhishma Pitama. And there first, most important verse. Aho kashtam, aho anyayam, yad yujan dharma nandana. Na jivitam klishna manam. Dharma, vipra, dharma, achyuta priya, achyuta ashraya. What does this mean? Your 3 चीज का आश्रय लिया तुमने. विप्र, पहला ब्राह्मण, विप्र. धर्म, कभी तुमने धर्म नहीं छोड़ा. Even in the adverse conditions, you do not leave dharma. And last is achyutah, भगवान का कभी सेवा नहीं छोड़ा. So this is the first thing we have to understand. And dharma, in dharma there is one important thing which we have to understand. कभी अपराध नहीं किया उसने. He never did any aparadh. I'll tell you one small story of, is it this in the Puranas? Once, Prahlad Maharaj was doing his DT seva. And unka DT kaun tha? Narsingh. No doubt, no big prizes to win that. Okay. तो नरसिंह देव का DT रख के वो पूजा कर रहे थे. And इतने में नारद मुनि की नारायण नारायण बोल के हवे में उड़ते उड़ते आए. तो नारद मुनि कौन है? प्रहलाद के guru, teacher. He only has given him what is devotion, he has taught him. So he came, उड़ते उड़ते आए, उनके घर पे आया, बोला प्रहलाद महाराज हैं. प्रहलाद महाराज is now a king. He is not a small child, he is now a king, and now his father is dead, so he has to run the kingdom. So the Dwarpal, he received Narad Muni, and he said, go and tell Prahlad that Narad Muni has come.
तो आके बोला उसने, द्वारपाल ने आके, एंड ही वॉज डूइंग द सेवा ऑफ नरसिंह देव. तो इमीडिएटली प्रहलाद महाराज टोल्ड हिम, ओ ही इज माई गुरु, प्लीज टेक केयर ऑफ हिम. उनको शांति से बिठाना, कुछ टाइम लगेगा, अभी मैं डीटी का सेवा कर रहा हूँ, टाइम लगेगा, बट प्लीज आस्क हिम टू वेट एंड आई विल कम. सो आफ्टर टेलिंग दैट ही वॉज बिजी इन engrossed in the service of the deity, नरसिंह देव deities. एंड वहाँ पे नारद मुनि एज इट इज, उनको तो श्राप मिला हुआ है. कौन दिया श्राप उनको? Cannot wait on one place one for a long time. क्यों? दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया. कब दिया? क्यों दिया? वो 10,000 हाँ जो संस थे उनको भक्ति के और हाँ. What is the job of दक्ष प्रजापति? दक्ष प्रजापति का मतलब क्या है? What is the meaning of? he has to produce. हाँ, प्रजापति मीन्स प्रजा की उत्पत्ति करने वाला. बिकॉज वो टाइम पे देयर वाज नो प्रजा, नो पॉपुलेशन इन दिस वर्ल्ड. एंड दक्ष मीन्स एक्सपर्ट, परफेक्ट. ही इज एक्सपर्ट इन हिज जॉब. तो उसको बोला कि प्रोड्यूस, तो दैट वाज द जॉब गिवन टू हिम बाय ब्रह्मा जी. तो ही प्रोड्यूस 10,000 चिल्ड्रन. दे सेड ठीक है, यू नो यू हैव टू फर्दर मैरी एंड procreate more children. ठीक है. These 10,000 children they went to the river side. That Narad Muni was moving around. Hey, इधर आओ, इधर आओ, ये सब मत कर, भक्ति कर, जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकल जाए. एकदम परफेक्ट प्रीचिंग करता. तो प्रीच क्या हो? यस, आप जो बोल रहे हो सही हो. घर पे आके बोला, हमको शादी नहीं करने का, हमको ब्रह्मचारी बनना है. दक्ष प्रजापति did not say anything. ठीक है, प्रोड्यूस्ड अनदर 10,000 चिल्ड्रन. अगेन दे वेंट, अगेन वापस नारद मुनि वहाँ आके वो लोग को प्रीच कर रहे, नहीं तुमको भक्त बनना है, तुमको ब्रह्मचारी रहना है, ये वो लोग ऑल्सो अग्रीड. तो दक्ष गॉट एंग्री दिस टाइम. बोला मैं इधर बच्चे पैदा कर रहा हूँ, माई जॉब इज प्रजापति, एंड हियर यू आर गोइंग एंड टेलिंग देम तुम ब्रह्मचारी बनो. इमीडिएटली गो एंड टोल्ड देम, went and cursed नारद मुनि. You cannot stay for more than 2 घड़ी, 2 घड़ी, short time. 2 घड़ी के ऊपर आप रह नहीं सकते हो. You will have to leave that place. नारद मुनि said, no problem, मेरे लिए और अच्छा है, I'll keep on roaming. So that was the curse given to नारद मुनि. तो नारद मुनि said, अभी इसको तो टाइम लगेगा प्रहलाद को, चलो मैं जाता हूँ. बट नारद मुनि के मन में कुछ गुस्सा नहीं था. नो क्लेश, ठीक है, मेरा क्या है, मैं तो घूमते रहता हूँ, कभी भी आ जाऊँगा, कभी भी मिलने आ जाऊँगा, मुझे क्या फ़र्क पड़ता. तो नारद मुनि वेंट. एंड दिस फेलो वाज डूइंग द डीटी पूजा. अचानक करते करते उसके मन में ख्याल आया, ये वही है ना जिसने मेरे ताऊ जी को मारा, ये वही है ना जिसने मेरे पिताजी का पेट फाड़ा, और मैं इसका पूजा कर रहा हूं. वाई, वॉट फॉर? मैं उसका, मेरा पिताजी का पेट फाड़ा इसी ने, और इसी ने ये किया, और मैं इसका पूजा कर रहा हूं. व्हाट अ फूल आई एम वर्शिपिंग दिस फेलो. बाजू में रहो. ए, गेट द आर्मी रेडी, वी विल फाइट. गेट द आर्मी रेडी, वी विल फाइट. आई एम गोइंग टू टेक रिवेंज ऑफ माई फादर्स डेथ. Oh, this is Prahlad Maharaj, mind you. आर्मी रेडी किया. बोला कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा? तो बोला वो नर नारायण पर्वत, मतलब नर नारायण ऋषि हैं बद्रीनाथ में, जाके उनको मिलो, वहाँ पे जाके मिलो. वहाँ पे मिले. तो एवरीथिंग इज गॉड्स लीला. ओके, गॉड्स लीला. ही वेंट ओवर देयर फॉर दिस फुल आर्मी. वहाँ पे जाके भगवान ने बोला अभी चलो नाटक ख़त्म ही करता हूँ, अभी बस हो गया. गए वहाँ पे, देखा तो एक एकदम बूढ़ा साधु बन के गए एकदम. तो और एक लकड़ा जमा कर रहे थे, बिकॉज साधुस दे नीड फॉर सैक्रिफाइस, फायर सैक्रिफाइस एंड ऑल. लकड़े वकड़े जमा कर रहे थे, वो स्मॉल स्टिक्स, समित जिसको कहते हैं.
तो जमा कर रहे थे। तो जैसे वो सब जमा कर रहे थे, वहाँ पे प्रहलाद महाराज ने देखा, अरे जो भी हो ठीक है, माई फाइट इज अगेंस्ट विष्णु, बट साधु संतों को तो मुझे आई हैव टू रेस्पेक्ट देम। तो इमीडिएटली वेंट टू हिम, आई टोल्ड हिम, अरे बाबा बोलिए हमको सेवा दो, हमको सेवा दो, मैं सेवा करता हूँ, आप जो भी सेवा बोलो मैं आपको करता हूँ, आप क्यों कर रहे हो? इमीडिएटली लॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ दैट एस्थेटिक, ऑन द फॉर्म ऑफ दैट साधु, इसे देखो हम साधु बनते किसके लिए? सेवा लेने के लिए नहीं। हमारा मेन मोटो इन आवर लाइफ इज वी शुड नॉट टेक सेवा, वी आर नॉट सपोज टू टेक एनी सेवा। जो भी है हम लोग को, जो हमसे बन पड़े हम वही करेंगे। नहीं नहीं नहीं, फिर भी आपको कुछ ना कुछ तो सेवा देना पड़ेगा, ठीक है? एक काम करो, वो लकड़ी उठा के दे दो मुझे बस। तो एकदम प्रहलाद महाराज एकदम स्टाइल में गया, लेफ्ट हैंड से उठाने गया, उठ नहीं रहे, और जोर लगाया, नहीं उठ रहा है। And he used both his hands, he's not able to lift. He put so much of power, it is said that शेष नाग के ऊपर 4 उंगली पूरा ब्रह्मांड ऊपर उड़ गया। That much power he put in lifting the stick, but the stick was not able to, he was not able to lift the stick. That time Prahlad Maharaj, Lord Vishnu said, क्या एक छोटा सा समिति नहीं उठा पा रहे हो और विष्णु से लड़ने निकले? और विष्णु से लड़ने निकले? जस्ट वन स्मॉल स्टिक, ड्राइड स्टिक, यू आर नॉट एबल टू, ट्विग, इट्स नॉट अ स्टिक, इट्स ट्विग, यू आर नॉट एबल टू लिफ्ट, एंड लॉर्ड विष्णु से लड़ने निकले। There he realized what happened. He said, fell down at the feet, clasped his leg, and he said, very sorry, I don't know what happened to me, why I have behaved like this. You see, the first thing what happens when you are too much engrossed in something, you disregarded your spiritual master, devotee. And when you disregarded your spiritual master, he did not feel bad about it, but I felt bad about it. So that is the first approach. And the minute someone does an action, that thought doesn't come, mind you, Bhakti Devi leave that person. Bhakti Devi उस व्यक्ति को छोड़ के चली जाती है, और उसके मन में फिर को विचार आते हैं उसी व्यक्ति के प्रति जिसका वो सेवा कर रहा है, जिसका गुणगान गा रहा है, वही व्यक्ति आप उसके लिए दुश्मन बन गया। Lord, I hope you are able to understand what I am trying to say. The same person whom after killing Hiranyakashipu, Nrsimhadev asked Prahlad, what were you want? What boon do you want? Tell me. And what did he say? What boon did he ask? किसी को याद है? हाँ? That I should never get any desires. To ask anything. I should never get any desire for asking anything or desire for anything more. ये सोचने वाला व्यक्ति है जो पिता मरा पड़ा हुआ है. And that time he says, okay, please, whatever my father was bad, but still he was a Rakshas, but still I want you to forgive him. Not, he didn't ask for moksha for him, mind you. He said, just forgive him. He said, that time Lord says, what you are talking of forgiveness? I will liberate 21 generations of yours. जिस घर में भक्त पैदा होता है 21 पीढ़ियां उसका तर जाते हैं. तो एटलीस्ट आपको असली श्राद्ध करना है, असली पितरों को आपको तराना है, तो पहले आप भक्त बन जाओ, बस हो गया. बाकी आप जाके यहाँ वहाँ श्राद्ध करो, ठीक है. आई एम नॉट डिनाइंग दैट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ द कर्म कांड एंड इज ऑफिशियल द शास्त्र इट इज मेंशन. सो यू डू दैट, बट दिस इज व्हाट यू कैन डू. You cannot recite the mantras of the Shraddha. You can't do every monthly Shraddha and all the various intricacies in the Karma Kand. So at least you can do this. ये तो कर सकते हो. ये करना क्या है? कुछ भी नहीं, भक्ति करना है. So Yudhishthira Maharaj never did this type of an aparadh. That is why dharma में रहना, in such adverse situation, to stick to dharma is always difficult. जैसे आज इंडिया पाकिस्तान मैच है, धर्म तो कहता है क्लास में जाना चाहिए, बट फिर
नेक्स्ट सैटरडे भी आएगा ना भाई, शुड नेक्स्ट सैटरडे. तो इट इज लाइक दैट. सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टिक टू धर्मा. दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड. सो फाइनली आफ्टर ऑल दिस thing, and he said, what does he say about this thing? Bhisma Pitama say, the verse number 15 he says, how wonderful is the influence of the inevitable time. आपका समय इतना बुरा था, जो गांडीवधारी अर्जुन था, गदाधर भीम था, इतना सब होने के बावजूद आपको इतना कष्ट उठाना पड़ा. It was none other than time which made you all suffer. Okay, can anyone read the translation of verse number 17? O best among the descendants of God, I maintain therefore that all this is within the plan of the Lord, accepting the inconceivable plan of the Lord, you must follow it. You are now the appointed administrative head, and my Lord, you should now take care of those subjects who are now rendered helpless. Yes. Next verse. This Sri Krishna is no longer than the inconceivable, originally personality of God. Is no other than. There is no other than the inconceivable original personality of God. He is the first Narayan, the supreme enjoyer, but he is moving amongst the descendants of King Bhisma, just like one of us, and he is bewildering us with his self-created energy. So there are two things which Bhisma Pitama is saying. First thing is he is giving a confirmation. The Krishna himself is that supreme Narayan, Adi Narayan. नारायण बहुत सारे वैरायटी है, बट ही इज अ सुप्रीम नारायण. उसमें वही है और उसके अलावा और कोई नहीं है. सेकेंड, ही इज मूविंग अमंगस्ट अस एंड बिविल्डरिंग अस बाय हिज माया. उसका माया से हमको पहचान में नहीं आ रही. अरे ये वही भगवान है क्या? यहाँ तक कि ब्रह्मा तक को कंफ्यूज कर दिया. I have always said this, that he is moving around, he is a supreme enjoyer. Bhagavan means he is a supreme enjoyer, he is a supreme bhokta. Bhoktaram yagya tapasam sarvalokam aishwaram suhridam sarvabhutanam gyatva mam shantim rachati. Lord says in the Bhagavad Gita, I am the bhokta. मैं रियल एंजॉयर हूं. और यहां पे धरती पे क्या है? हर कोई व्यक्ति एंजॉय. और हमारा एंजॉयमेंट का लेवल कैसा है? एकदम घटिया. खाना, अच्छा खाना मिल गया, एंजॉयमेंट. अच्छे कपड़े मिल गए, अच्छे घूमने चले गए, चार लोगों के सामने दिखाने लायक हमने कुछ ऐसा कार्य किया कि चार लोग हमको देख के जले, तो दैट इट इज भोक्ता. हम भोक्ता बन गए, बट भगवान वो भोक्ता है ही नहीं. द रियल, दैट इज वाई दिस अर्थ इज अ पिवोटेड रिफ्लेक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड. वहां पे जो है उसका उल्टा यहां पे है. देयर इज लव, हियर इट इज लस्ट. देयर इट इज लव, हियर इट इज लस्ट. देयर इज नो envy, here it is only envy. Envy is not considered as a point of happiness. Little bit of anger which was showed by जय विजय, उसके लिए क्या हुआ? Little bit, थोड़ा सा. That only perfect beings can stay there. Only imperfect beings can stay in this world. If someone says in this world I am perfect, then he is not supposed to be here. He is imperfect, that is why he is here. Some imperfection is there. I may not be saying, that may be quantity vary, it may vary. Like कोई पास 35% से भी पास है और कोई 99% से भी पास ही है. पास तो दोनों है. 35% मैं भी पास हूँ, दोनों एक ही साथ बैठ के हाँ पास, बट परसेंटेज में बहुत बड़ा अंतर है. Similarly, that same manner, please understand that he is moving among the Vrishnis. What does this mean? ये हमारे बीच में क्यों घूम रहा है? Because he is saying, मुझे कोई वैकुंठ में गाली दे सकता है? ब्रज में दे सकता है.
ब्रजवासी आज भी गाली देते हैं, लेफ्ट एंड राइट सुनाएंगे भगवान को, और ये इतना सुनने के लिए ही भगवान यहाँ आते हैं, क्योंकि वहां कोई सुनाने वाला नहीं है, वहां पे कोई सुनाने वाला नहीं है, वहां पे कोई उसको सेवा करवा के लेने वाला कोई नहीं है। यहाँ पे सेवा करवा के लेंगे या उसको सेवा करने का मौका मिलेगा, भले भक्तों को सेवा करवा के लेना नहीं, बट उसको यहाँ सेवा करने का मौका मिलेगा, दोस्तों के साथ खेलने मिलेगा। जो दोस्त इन द सेंस जो भक्त हैं, दोस्त के शरीर में है या सखा भाव में है, उनके साथ ही कैन एंजॉय। एंड देन सम foolish people like Pondraka will come and say, hey, you are not God, I am God. तो उसके साथ युद्ध भी कर लेंगे थोड़ा, बट मेन युद्ध तो उन्होंने जामवन के साथ किया 28 days। वाह, कुश्ती। The Lord by just raising his eyebrow, billions and billions of Brahmand get vanished. That person is not able to defeat Jamban in 28 days. Is it possible? भगवान पे चोरी का इल्जाम लगा सकते हो? किसी में हिम्मत है? जाके सीधा अपना घर का डीटी को बोलो तू चोर है। वृंदावन में सीधा भगवान के मुंह पे बोले, यार हम तो विग्रह को बोल रहे हैं, तो भगवान को ही बोल देते, तुम चोर है, माखन चोर है, चित चोर है, जो भी है चोर है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इवन व्हेन सत्रजीत वाज किल्ड, उसके ऊपर आरोप बना था ना, हाउ समंतक मणि का चोरी का आरोप लगा था ना। सो इन दिस मटेरियल वर्ल्ड इवन इफ लॉर्ड कम्स ना, आरोप लगेगा ही लगेगा। And I don't know whether you'll remember this very important Leela. No, why did Lord allow Sita to get kidnapped? Why did Lord allow Sita to get kidnapped? Why was he crying after she was kidnapped? He was crying. There's another bhav given by Acharyas. Once it so happened that Ram and Sita were in the jungle along with Lakshman and going from one forest to another forest. So all the Rishi Munis, they were all excited. Wow, why should we have to follow celibacy? We can become like Ramchandra ji, we can also marry and have a nice wife like Sita Maiya, and we can also live happily. So Ramchandra ji said, oh, ये गड़बड़ हो रहा है, मैटर किधर का किधर और हो रहा है, कुछ मामला गड़बड़ रहा है. And what was their plan? अब कहाँ से पत्नी पकड़ के लाएंगे? जंगल में कहाँ से पत्नी मिलेगी उनको? इतने सारे hundreds and thousands of rishis were there. No problem, हम लोग एक एक पत्थर लेके जाएंगे और रामचंद्र जी को बोलेंगे पैर रखो, स्त्री बन जाएगी, अपने लिए पत्नी अपना अपना पत्थर लेके जाएंगे. It's not a true story, it's the bhav of the acharyas. You know, some acharyas have spoken this. I really loved it, so I'm just sharing with you all. तो जैसे रामचंद्र जी पैर रखेंगे वो स्त्री बन जाएगी और स्त्री बनते ही उससे विवाह करके हम सुखी रहेंगे, भक्ति भी करेंगे, भजन भी करेंगे और वाह रामचंद्र जी की तरह ऐसे. रामचंद्र ने बोला ओ ये मैटर गड़बड़ है. इमीडिएटली सर लेट मी पुट अ लीला. सो सीता मैया वाज किडनैप्ड एंड नाउ लॉर्ड वाज क्राइंग, हे सीते, ये पेड़ को पूछ रहे, इसको पूछ रहे. उसको देख के साधु लोगों ने बोला नहीं बाबा अपनी परिस्थिति ऐसी हो जाए तो आई बेटर वी डोंट गेट मैरिड. सो इट्स लाइक दैट्स हाउ राम. सो व्हाट आई मीन टू से इज एवरी लीला हैज गॉट सम मैसेज. I mean that's how some acharyas interpret this message as, though that's not the real cause mentioned in any of the Ramayana, but this is how few acharyas say, and they interpret Ramcharitmanas in that way. Because Ramcharitmanas has got a lot of worldly way of dealing it, whereas Valmiki Ramayana is like very specific. Whereas ये थोड़ा social conditions, social thinking को consider करते हुए Ramcharitmanas है. So he says, Lord is enjoying amongst us, but please remember, he is not an ordinary person. He is not an ordinary person, he is the Supreme Lord. And already in the Bhagavad Gita, Lord has said, I. कितना बार बोला? 7 chapter, 8 chapter, 10. Every chapter literally he has said. After 7 chapter, every chapter he has said, I. Me. That's why some people say
ऑटोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक नहीं, ये पहला आदमी है जो सच बोल रहा है। अगर कोई यहां पे बोल सकता है मैंने ये किया, मैंने वो किया, हमने कुछ भी नहीं किया। अगर कोई कर सकता है तो वो है भगवान। हाँ, हमको बल जरूर दे सकते हैं, हमको बुद्धि दे सकते हैं वो कार्य करने के लिए, बट करते हैं और करवाते हैं ओनली भगवान ही करवाते हैं। सो दैट इज व्हाई ही इज अ सुप्रीम लॉर्ड। ओके, नेक्स्ट वर्स। O King, Lord Shiva, Narada, the sage amongst the demigods, and Kapila, the incarnation of Godhead, all know very confidentially about his glories through direct contact. तो ये तो उनके साथ रोज उठने बैठने वाले लोग हैं। कौन कौन? शिव जी, नारद जी, हाँ, ये सब। एंड देवी देवता, देवी देवता जब भी प्रॉब्लम होता है कहाँ जाते, किसके पास है? विष्णु के पास ही जाते हैं। तो एंड में विष्णु के पास ही जाना पड़ता है। मगर वो देवी देवताओं को कभी कभी डाउट आ जाता है, मालूम है आपको? कभी आता है इंद्र भगवान, वो तो ठीक है। देयर इज वन वेरी नाइस इंसिडेंट मेंशन्ड इन द रामायण। व्हाट हैपेंड वाज, आफ्टर द ब्रेकिंग ऑफ द बो, शिव धनुष टूट जाता है। तो इमीडिएटली इन वाल्मीकि रामायण ब्याह होने के बाद, मतलब राम सीता, सॉरी राम भरत लक्ष्मण एंड शत्रुघ्न चारों का शादी जब हो जाता है, एंड व्हेन दे आर रिटर्निंग बैक टू अयोध्या, दैट टाइम परशुराम एंटर्स। वेयरएज इन रामचरितमानस इधर टूटा नहीं, उधर ठप परशुराम कम्स। बट बोथ इन बोथ रामायण इट इज मेंशन्ड दैट ही कुड मूव एट द स्पीड ऑफ माइंड। व्हाई? हाउ कुड परशुराम मूव एट द स्पीड ऑफ माइंड? Huh? How many types of avatars are there, bro? 6. बोले बहुत सारे वैरायटी। शक्त्यावेश अवतार, पूर्ण अवतार, दैट इज पुरुष अवतार, देन लीला अवतार, गुण अवतार, वेरियस अवतार्स। उसमें से ही इज शक्त्यावेश अवतार। Even you can become Shaktivesh avatar. If for a certain purpose Lord gives you the power to accomplish it, then you become a Shaktivesh avatar. In fact, even Hitler was given, Prabhupada tells Hitler is also a Shaktivesh avatar of Vishnu. उसको नहीं तो वो ताकत नहीं था इतने लोगों को मारना. It's not anyone's job. Nobody can do it that much easily. He did it. So now, how far it's justified and true, I don't want to fall into the debate of it, but he mentions it. So Parshuram comes over there, and then Parshuram narrates this story to Lord Ramchandra. He says, Ram, जो बो तूने तोड़ा, वो बो कौन सा था? शिव जी का। और शिव जी ने उससे क्या, किसको मारा? असुर त्रिपुरा को मारा। Now, who was the Tripura Asura? ताड़क असुर जो था, उसके पुत्र थे, 3 पुत्र थे। अभी पिताजी मर गए, असुर का पुत्र असुर ही रहेगा। तुरंत उसने तपस्या की, ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी आए, बोला क्या वर चाहिए? सब राक्षस वही पूछते हैं, अमर बना दो हमको। बोले सॉरी, वो नहीं मिलेगा। अच्छा ठीक है। ये हिरण्यकशिपु का भी बाप निकला ये। हाँ, तो इसने आइडिया क्या लगाया, हम लोग 3 भाई 3 अलग अलग शहरों में, सिटीज में रहेंगे, एंड दैट सिटीज विल बी लाइक फोर्ट। वन विल बी ऑफ गोल्ड, वन विल बी ऑफ सिल्वर, एंड वन विल बी ऑफ आयरन, एंड वी विल स्टे इन द 3 forts, एंड वी विल ओनली डाई in 1000 years. Only for one short time, all the 3 cities will come in one line. If someone shoots an arrow and kills all the 3, destroys all the 3 cities in a single arrow at that very moment, then only we will die. Till then we will not die. क्या मतलब एकदम मैं ना दिन में ना रात में, ना अंदर ना बाहर, ना ऊपर ना नीचे, ऐसे ये सब so many plans asuras have got, The biggest dumbos are they are the asuras. Why? They want to become immortal, but they don't realize that we are immortal. Lord says, for the soul there is no death. Death is only for this body. मरता क्या है? शरीर है। आत्मा कभी मरती नहीं है।
तो उसको मारने के लिए क्यों, उसको जिंदा रखने के लिए क्या उसको टेंशन है? तो ब्रह्मा जी ओके, वो तो हमेशा एवरीथिंग सैंक्शन, ऐसा आड़ा टेढ़ा सैंक्शन. नाउ हु विल डू दिस जॉब? तो ऑल देवतास वेंट टू विष्णु. तो विष्णु को बोला एक काम करते हैं, let Vishwakarma prepare a bow. And 2 bows were made. One was given to Vishnu and one was given to Shiva. And Shiva said, I will shoot the arrow. ठीक है, done. But arrow में कैसा था? Agni Devata became the tip of the arrow and Vishnu became the arrow. And Shivji fired that arrow, but that all 3 came in a line, killed. Through Tripura Asur was killed. Means 3 Pura. Pura means city. 3 means 3. 3 Pura. Pura means city. तीनों सिटी को मार दिया. Gold was in heaven, iron was in the sky, and silver was in the sky, iron was in the earth. तीनों सिटीज एक लाइन में आए, तभी उसने मारा, मर गया. अब देवताओं को डाउट आया, शिव बड़ा कि विष्णु बड़ा? बाण तो किसने मारा? शिव जी ने. तो ब्रह्मा जी को जाके बोला, ब्रह्मा जी. अब ब्रह्मा जी को मालूम, फर्स्ट वर्स हम लोग पढ़ते हैं, ब्रह्म हृदय आदि कवे पुयंती सूर्य, पढ़ते हैं ना हम लोग. ब्रह्मा के हृदय में पूरा ज्ञान देने वाला कौन? लॉर्ड विष्णु. तो फिर भी ब्रह्मा जी बोला ठीक है, अभी तुम लोग को सिखाता हूँ. ही गोज इन क्रिएट्स ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन विष्णु एंड शिवा. झगड़ा, दोनों के बीच में झगड़ा करवा दो. तो जाके बोला देखो, शिवा सेज सी आई ओनली किल्ड. विष्णु सेड हाउ यू किल्ड? द एरो वाज मी एंड हु किल्ड वाज द एरो, इट वाज नॉट द बो. ठीक है, लेट्स हैव अ फाइट. तो दोनों सामने सामने आ गए, दोनों झगड़ा करने के लिए सामने सामने खड़े हुए. एंड वहां पे विष्णु he just makes a हुंकार साउंड, यू नो. इतने हुंकार मारते ही that bow got extended. The system is the bow should get, a string should be extended. The string got extended of the bow. तो तुरंत देवी देवता सब समझ गए, प्लीज नो वॉर, वी हैव अंडरस्टूड हु इज द सुप्रीम, वी डोंट वांट एनी वॉर. ठीक. देन विष्णु gave it to sage Richika, through him it came to Parashuram, and there Shiva gave that bow to, मतलब रहेगा तो झगड़ा करेंगे ना, झगड़ा नहीं, अगर रहेगा नहीं तो झगड़ा करने का या हु इज ग्रेटर हु इज स्मॉलर का लफड़ा ही नहीं. ही गेव इट टू देववत, दैट इज इन द जनका डायनेस्टी. जनका में भी जनका 1 2 3 4 5 ऐसा डाउन, लाइक किंग जॉर्ज, किंग एडवर्ड द फर्स्ट, एडवर्ड द सेकेंड, एडवर्ड द थर्ड, वैसा जनका 1, जनका 2, जनका 3, इट वाज अ हायरार्की. तो उनको दे दिया, तो उस तरह से आया. तो डोंट व्हाट, दैट इज व्हाई ही इज स्पेसिफाइंग, ही इज सेइंग इवन द डेमिगॉड्स, द शिवा, नारदा, दे हैव आल्सो कंफर्म्ड that who is the supreme God. just उनके हुंकार से जब शिवजी का धनुष का धागा पीछे जा सकता है, the string of the bow can go behind. just imagine, we can imagine who that supreme God Narayan is, and they say Krishna is none other than that very own first Narayan, Adi Narayan, वही है. Yeah, next verse. That personality who out of ignorance only you thought to be your maternal cousin, your very dear friend, well-wisher, counselor, messenger, benefactor, etc. is that very personality of Godhead Shri Krishna. Here, Bhisma Pitama is using one word, out of ignorance. अज्ञानता की वजह से आप उसको अपना cousin brother, your counselor, your messenger क्या क्या lowest काम किया है, इतना low काम. अगर that is why pride is there only in this material world. In the spiritual world there is no pride. Huh? Krishna became messenger, postman. Lowest job. Krishna became driver. Lowest job. क्या क्या मतलब लिटरली यू सी राइट फ्रॉम कृष्णास वृंदावन लीला, एक कटोरी छाछ के लिए नाच रहे हैं,
हाँ, गोपियों के सामने झगड़ा कर रहे हैं, साकरी खोर में मार खाया, गाल इतना मारा कि गाल लाल हो गए उसके. जस्ट इमेजिन. एंड द सेम पर्सनैलिटी becomes, when he becomes big, he is becoming a messenger, he is become the saying, begging. See, mind you, when he went to as a messenger, he did not go with rubab. He said, 5 गांव दे दो, ये युद्ध में छोड़ दूंगा, मैं पांडवों को समझा दूंगा, युद्ध छोड़ दे, 5 गांव दे दो. That was literally like a beggar. He begged, but he did all that. Plus, he was also his well-wisher and counselor. He gave him the knowledge of Bhagavad Gita. So he is telling that जो आप सोच रहे हो ना, he is that very personality of Godhead. वो खुद ही वो ही भगवान है जिसको आप अज्ञानतावश सोच रहे हो कि आप वो ये बन गया वो बन गया. But is that ignorance? How, from where does that ignorance comes? Where do you understand the ignorance comes from? वो अज्ञानता आती कहाँ से? Maya, very good. So he is using Maya. Otherwise, you know what happened in the Bhagavad Gita 11th chapter. By the way, किसी ने पढ़ा भगवद गीता अपने आप से कुछ कभी खोल के? हाँ, प्रभु जी सुनाते हैं, सुन लेंगे. उसके अलावा कभी खोल के पढ़ा? हाँ. In the 11th chapter, Lord shows the Virat Rupa. It is actually said by Acharyas that Virat Rupa was shown to even Parshuram ji in the when the Leela, when Parshuram ka dhanush jab छीन लिया. You know, it's that Parshuram was showing the arrow bow and Ramchandra ji pulls that bow from his hand. And he doesn't just pull the bow. He pulls a Vishnu power, which was that empowerment which was given to him, that is also taken away. That is why there is a shloka which mentions that he is looking helplessly, as if he has no power. जैसे Arjun was, after Krishna left, his Gandhi was powerless. Parshuram also became powerless. So another Leela, why he ran away from there. There is another Leela behind that we'll discuss some other time. दुर्योधन को नहीं, वहां पे सबको दिखाया मगर सिर्फ 2 जन देख पाए, सिर्फ भीष्म पितामह एंड धृतराष्ट्र. वहां पे जब मैसेंजर बन के गया था, उसको पकड़ने जब गए, they could only see the glare of it. They could not see the Virat Rupa. Whereas he showed, धृतराष्ट्र को बताने के पीछे कारण क्या था? भाई, स्टॉप द वॉर, आई एम द सुप्रीम गॉड. मतलब उसने ऑल टाइप्स ऑफ वार्निंग दे दिया था, बट स्टिल ही वॉज अंडर द लव एंड अफेक्शन एंड ही वॉज अंडर द स्वे ऑफ हिज सन. एंड जब भी बच्चे के बात सुन के बाप नाचेगा ना, यही गड़बड़ होगा. वन हैज टू हैव हिज ओन. व्हाट इज धर्म? डोंट लीव धर्म एंड गो. दैट इज द पॉइंट. आचार्य से वेरी नाइसली, हम लोग आज हिंदू राष्ट्र चिल्ला रहे हैं. पहले मुझे बताओ, आई मीन दैट्स व्हाट आचार्य आस्क्ड, वाज रावण अ मुसलमान? ही वाज विश्रवा's सन. कौन? विश्रवा, बिग सेज कमिंग फ्रॉम सिंग द ब्राह्मण फैमिली. एंड वो खुद भी वेद पाठ करता था. जितने असुर थे लंका में वेद पाठ करते थे. सो व्हाट डज दिस मीन? वी वांट धर्म. राम राज्य मीन्स धर्म का राज्य. हिंदू राज्य का कोई मतलब, देयर इज, इट्स ओके इफ वन इंटरप्रेट्स राम राज्य एज हिंदू राज्य, इट्स ओके, बट एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग शुड बी राम राज्य मीन्स वेयर देयर इज ओनली एंड ओनली राइटियसनेस. जो सही चलता वही होना चाहिए. So from this we understand that it is that very own Lord that who showed even the Virat Rupa to Parshuram ji when this incident happened, after when he came and questioned about the bow. So he sees that is that very same God and you are not able to identify. बार बार भीष्म पितामह ये कह रहे हैं कि भाई जो तुम्हारे साथ जो खड़ा है ना, वो महान व्यक्ति है, बट फिलहाल एकदम तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा मेंटोर, तुम्हारा मैसेंजर, जो भी बोलो, तुम्हारा सारथी सब बन के खड़ा है.
Please identify. Yeah, next verse, Chandrakant. Read. Being the absolute personality of Godhead, He is present in everyone's heart. He is equally kind to everyone, and He is free from the false ego of differentiation. Therefore, whatever He does is free from material inability. He is equibalanced. This is the guna of the qualities of the Lord. What is the first quality? He is free from false ego. He is present in everyone's heart. तो याद रखना, जब भी आप कुछ कर्म कर रहे हो, CCTV रिकॉर्डिंग इज ऑन. हाँ, आपके अंदर ही CCTV रिकॉर्डिंग हो रहा है ना. दैट इज वाई आप दुनिया को भले ही झूठ बोल लो, अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते. यू कैनॉट टेल लाइज. You may convince others, but you can't convince yourself if you have done something wrong. Second, what is the second quality? He is equally kind to everyone. Can anyone give me an example of how he is equally kind to everyone? During the Setu. To squirrel also and to the monkeys also. Very good. Something more? Putana. Yes, one who came to kill Putana, मतलब one who came to kill him, उसको भी सदगति दे दिया उसने. उसको मारने आने वाले व्यक्ति को कोई हम में से कोई करेगा? अगर कोई आपको मारने आए आप और पकड़ा गया तो आप बोलोगे पुलिस डंडे 4 डंडे और मारना इसको, मुझे मारने आया था, है ना. और ऊपर से हम लोग भी श्राप देते रहेंगे, मर, तेरा अच्छा नहीं होगा, सत्यानाश होगा तेरा. हम भी करते हैं, बट भगवान ने ऐसा बोला पूतना को तेरा सत्यानाश हो? कुछ नहीं, उल्टा उसको धात्री का रोल दे दिया, सीधा वैकुंठ में दे दिया, उसको गोलोक में दे दिया. सो वन हैज टू अंडरस्टैंड दैट लॉर्ड इज इक्वल टू एवरीवन. ओनली थिंग इज यू हैव टू अप्रोच हिम. द प्रॉब्लम इज वी डोंट अप्रोच हिम. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ही इज फ्री फ्रॉम false ego of differentiation. ईगो, we in ego we differentiate. ये प्रिय है, ये अप्रिय है, ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है. Why are we doing it? Only because of ego. That is why today people are becoming brand conscious. What is the use of becoming brand conscious? We are only and only differentiating. When a product is available, any product, let's say a shirt, कौन सा ब्रांड है? सादा ब्रांड है. ओ, इसका ब्रांड अच्छा है. कपड़ा पहना है ना, कपड़ा तो पहना है. आजकल कितने लोग अच्छे अच्छे एरिया में सुखदेव गोस्वामी जैसे घूमते रहते हैं. वो मॉडर्न कहलाते हैं. इफ न्यूडिज्म वाज मॉडर्निज्म, आई थिंक द आदिवासीज आर द मोस्ट मॉडर्न पीपल इन द वर्ल्ड. Yes, if that is the definition, if that we how we conclude. तो कहने का मतलब क्या है? Be it be a shirt, be it be anything. I mean, be anything. I mean, just it's today has become horrible, right? From undergarments, everything has become branded. So now people are just in that mode. And how is that cropping up? Why you are desiring to buy that? Why you are desiring to buy a higher brand or a better brand or a costlier brand? What is the purpose behind it? इसके पीछे का मकसद क्या है? Ego satisfaction. Only satisfy. But Lord, राजा के घर पे पैदा होना है? नहीं. वृंदावन में. अच्छा, वृंदावन में क्या करेगा? नहीं, गैया चराऊंगा, पार्थसारथी बन जाऊंगा, घोड़े को चलाऊंगा, मैसेंजर बन जाऊंगा. He does all these type of menial jobs. That is what makes him free from false ego. Whereas we are all filled with false ego. अगर किसी को बोल दे, अरे चलिए प्रभु जी, माता जी गाड़ी चलाइए, मैं गाड़ी चलाऊँ, कौन है पता है आपको? This is what is the greatness of God. For his devotees, he can do anything. He can go to any level, any extent, and he can do everything. इसका प्रॉब्लम नहीं था. When in दंडकारण्य रामचंद्र जी का कोई प्रॉब्लम नहीं था. He was living happily with his wife. All the rishis came and said, please, please save us. ये बहुत राक्षस, देखो पहाड़ बन गया है, इतने हड्डियों का पहाड़ बन गया है, असुर आके रोज हमको तकलीफ देते हैं.
तब रामचंद्र जी, आई टेक ए वाउ दैट आई विल क्लियर ऑफ ऑल द असुरस. सीता मैया सेज, व्हाई, व्हाट इज द नीड फॉर यू टू इट? इज इट एनी नीड? आप राजा हो. राजा कौन है? भारत. इट इज भारत जॉब, इट इज नॉट योर जॉब. यू आर इन वनवास. बट स्टिल ही सेज नो, आई विल फाइट फॉर देम. प्रॉब्लम किसी और का, बट फिर भी उसने लिया ना. दैट इज वॉट इज गॉड. दैट वॉट मेक्स गॉड समथिंग ग्रेट. And that time he says, don't think these sadhus are not, they cannot, these rishi munis cannot kill the asuras. They can easily kill with their तपोबल. उनका तपबल से हम लोग मार सकते हैं, बट तपोबल उनका क्षीण हो जाएगा, कम हो जाएगा. और इतने 10-10 साल, 20-20 साल, 50-50 साल तप करेंगे और बाद में एक रासुर को मारा, वापस जीरो. वो दैट इज डिफरेंट. दैट इज तपोबल ऑफ विश्वामित्र मुनि. वो भी खत्म हो गया, बेचारा उल्टा लटका उधर ही. तो तपोबल यूज करना नहीं चाहिए. बट भगवान के अंदर तपोबल की कोई कमी नहीं. दैट इज वाई वी हैव टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट श्लोका, द इन्वोकेशन ऑफ लॉर्ड. व्हाट इज दैट? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते. पूर्ण है, पूर्ण से जो निकला वो भी पूर्ण है, और पूर्ण से पूर्ण निकलने के बाद भी जो बचा वो भी पूर्ण है. दैट इज वॉट, दैट इज वाई ऑलवेज आई मेक द स्टेटमेंट, गॉड इज ग्रेट बट वी डोंट नो हाउ ग्रेट गॉड इज. वी आर कंफ्यूज्ड. दैट इज वाई. And he doesn't differentiate because of false ego, and therefore whatever he does is free from material interpretry. What is the meaning of that? हम लोग भौतिक गलतियों के साथ कोई भी कार्य करते हैं, बट उनके कार्य में कोई भी भौतिक गलती नहीं है. No material contamination is there because he is free from material contamination. Whatever he does will be perfect, and his perfection is he is equibalanced. कभी असुरों को मारेगा तो कभी सुरों को मारेगा, कभी सुरों को मारेगा तो कभी असुरों को मारेगा. No, the Trishanku case, he the example where all the 3 cities had to come, all the 3 sons were staying. Tripura. All the 3 sons were staying. Devatas came and told Vishnu, कुछ गलती नहीं कर रहे हैं. बोलो, say they are not troubling us, they are all demons. They are not troubling us, but we don't want the demons. Lord said, अच्छा, मारने के लिए कुछ कारण चाहिए, justified reason. अभी आपने खून नहीं किया तो आपको सजा तो दे नहीं सकते फांसी का, तो कुछ पहले खून करवाना पड़ेगा ना आपसे. तो लॉर्ड व्हाट डिड ही डू? ही क्रिएटेड वन बीइंग, एंड दैट बीइंग ही लेफ्ट ओवर देयर. ही सेड यू गो, एंड ही सेड व्हाट द बीइंग सेड, व्हाट शुड आई डू? गो एंड प्रीच देम उल्टा फिलोसफी अगेंस्ट द वेदास, सब सिखा देना. अच्छा ठीक है. ही वेंट एंड विष्णु क्रिएशन जाके उसने अगेंस्ट द वेदास सब सिखाया वो लोगों को. जब when people do against the Vedas, then only Lord says, now they have done something wrong, now we will kill them. And that is how they got killed. जब तक आप वेदों के खिलाफ कुछ भी नहीं करते हो ना, अगर आप असुर भी रहोगे तो भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा. So he has to make you do that. So that is why he is equibalanced. He is not pro one side or the other side. He will do that. Okay, with this we like to stop today's session. We'll start from 1.9.22 next class. Anybody has got any doubts, questions can ask. किसी का कोई प्रश्न?